instructions. Mr. Khatib Abdul Rashid, Dr. Roshan Sheikh, Mr. Sadhu Salian, Mr. Ashraf Bengre, Mr. Haji Abdullah Parkada, Mr. R.K. Nayak. Your presence for this evening's festivity adds glitters to our campus. We are really happy to have you all here. We are also delighted to have our management members, Mr. F.M. Abdul Razzaq, the President, and all the trust members. We acknowledge your presence as it is an explicit sign of concern for us. It's my immense pleasure to welcome our headmistress, Mrs. Shweta Shetty, and also primary headmistress, Mrs. Sahana Ali. You both are a true inspiration for the students, both in academics and emotional front. I extend a warm welcome to all our special invitees, our supporters of well-being of our school. Certainly, your arrival amidst us brings us a lot of hope, and our future is being built on this hope. Welcome to all the parents who are our real-life minors and role models, the one who creates alluring ambience, inspiring and igniting our minds to explore the unknown. You have set a target for our future and have become instrumental in achieving our destined goals. I also extend a warm welcome to all teaching and non-teaching staff of my school. Undoubtedly, you have become an asset for us. We cherish your meaningful accompaniment in our growth. Let this be a memorable and marvelous evening, leaving in everyone's heart an indelible mark. Once again, I gladly welcome you all and wish you a splendid time with us. Thank you. I invite our headmistress, Mrs. Shweta Shetty, to give a keynote address. Good evening, one and all. I heartily welcome all present here. It's my honor and high privilege to celebrate an important milestone of FVPS history. It's an honor to have Mr. Vinay Kumar Surake, who will be joining us after a few minutes. I also welcome our DDPI, Mr. N.H. Nagnur, Deputy Director of Public Instructions, UP District, President of Masjid Khatib Abdul Rashid Sir, all the guests of honor, Mr. Sadhu Salian, Mr. Ashraf Bengre, Mr. Haji Abdullah Parkala, Mr. B.M. Zafar, and Mr. R.K. Nayak. We also have a special guest who have come from Mumbai, Dr. Roshan Zahan Sheikh, having lost both her legs in a train accident, stood up strong, questioned the court, changed the law, and completed her MBBS degree, and currently pursuing MD. Thank you, Madam, for joining us with us today. I am also welcoming our President, Mr. F.M. Abdul Razzaq, and our academic head, Mr. H.M. Yasin, and respected trustees of FVPS, and Arabic head Maulana Imran Khan. It's my prestige to welcome my dearest parents who constantly extended their support and love to all the prospect of the school and the faculty members of FVPS and PTA members and dedicated staffs and their wishes. It is my prestigious moment of FVPS to complete 19th year and stepping into the 20th year. It's very difficult to believe that what was dreamt in the beginning is being fulfilled now. The idea of putting the foundation of the Education Institute was planted as a sapling, which is now all grown to a tree by the hard work of and contribution of each member of the society. A journey which began in the year 2002, making a headway to the ladder of achievement. On this decennial year, we are celebrating it as a day of motivation, wherein we have main stars of attraction with us, Ms. Nandini from Mysore, visually impaired and secured 92.16%, and Master Kaushik Acharya from Beltangadi, born with no hands, wrote SLC exam with his legs and secured first class marks. In spite of being physically challenged, they are the proud achiever of SLC examination 2019 and 20. Also we have Master Mahesh from Bangalore, who read Under the Solar Light and secured 98.57% in the SLC examination. And also we have our own Master Shoaib Mansoor Hassan, who was a slow learner and earned flying color marks in the board examination. To motivate and encourage our students,
young minds of today's generation and responsible citizen of tomorrow, it's very important to enhance and confidence level and of students so that they become successful in their life. Thank you all for joining us today, making this symbolical day possible. Let us all have a wonderful celebration. Let us begin and unfold the various events awaiting. I hope you all enjoy this evening. Thank you, one and all. To mark the greatness of this year, we are introducing the Vesenial logo. I request Mr. Sadhu Salyan to inaugurate the symbol of Vecinary era. I request the other dignitaries to please join him. A school magazine is the window to the activities of the school. Flowers of Paradise Public School Malpe inaugurates Vasennial Year Celebration as a day of motivation. Our sincere thanks to Yashasvi Fish Meal and Oil Company, Pitrodi Udyavara, Mr. Ashraf Bengre, Mr. Haji Abdullah Parkala, Gitanjali Silks Udupi, the biggest showroom of Karnataka, Tonse Health Center, Nature Cure Hospital, Hude, Saim Group, Saim Fashions, Saim Developers, Saim Traders, Saim Select Udupi, and SPG Jewelers, Kundapura. Thank you to all the dignitaries. A school magazine is the window to the activities of the school. I request Mr. N.H. Nagu to inaugurate the school yearbook. Thank you, sir, and to all those who have worked hard in bringing out this yearbook orchid. Our school is managed by a wonderful team of members who always work for the best of our school. Yes, the management of our school are the men who help in the task of running the institution smoothly and effectively to frame the policies, rules, and regulations. From the past 20 years, the Malpe Education Society were managing the entire school. But this year, a trust of 26 members has been formed to provide the good leadership and the dynamic supervision. Now, I call upon Mr. Khatib Abdul Rashid to do the inauguration. Malpe Education Trust. It all began in the year 2002 with sheer determination and perseverance. Masjid-e-Abu Bakr Siddiq Malpe took an initiative to proliferate service towards the society with Flowers of Paradise Public School. This school was started with the vision of inculcating a broader framework and infusing new values in the field of education to the young minds of our country. It started with mere 16 students in 2002. Today, FPPS stands on the pedestal of innovation and growth. On the eve of 20th year of the school, a trust has been formed under the name Malpe Education Trust. Let us all get to know the members of this board. Mr. Abdul Razak, President. Mr. Khatib Altaf, Secretary. Mr. Abdul Sattar, Treasurer.
Mr. H.M. Yasin, Academic Director, Mr. Quresh, Finance in Charge, Mr. Abdul Latif, Maintenance in Charge, Mr. Nakwa Yahya, External Affairs in Charge, and the members are Mr. M. Shabir, Mr. Mustaq BAM, Mr. Rahmatullah Siddiq, Mr. Ustad Usman, Mr. K. Salahuddin, Mr. Khatib Mukhtar, Mr. F.M. Yaqub, Mr. T.M. Tanveer, Mr. Suhail ABF, Mr. Ansar, Mr. U. Ahmad, Mr. Ashraf Bengre, Mr. T.S. Firoz, Mr. Asif Iqbal, Mr. M. Asif, Mr. Shafiq Kodavur, Mr. Khatib Junaid, Mr. Khatib Fahim, and Mr. Parvez. Thank you, one and all. We are happy to have a team of such outstanding people as our management. We FPPers are never ready to quit and are always ready to prove that we are the winners. Now, it is the time to recognize the hard work of such winners. I request Mrs. Geeta B to announce the name of those students who are being felicitated. We are proud of our students who have achieved and inspired everyone in achieving heights in SSLC examinations, who made both the school and their parents proud. Now it's time to felicitate our toppers. May I now request our Honorable DDPL, Mr. N.H. Nagur, to felicitate the first topper of our school. I want to thank all my teachers for their hard work. They have always been there for us and a source of inspiration for us. It really feels such a great honor. I lack deficiencies to express my feelings. 12 years in this school was such a great experience for me. I feel really great for being able to convey my words to you. Thank you. Thank you, madam. Good evening, everybody present here. I'm happy to be a part of this function. I thank all the teachers, HM and the non-teaching staff for their good support they have given me. By their support, I have been able to be in a good position. So it's a pleasure to be honored here. Thank you very much for giving me opportunities to speak here. Thank you. Thank you, sir. Thank you, sir. Memories are all you have left to remind you of the wonderful person that they were and what a beautiful life you shared together. Now I request Ms. Rinas to give a tribute to our very own late Mr. Rajesh sir as a token of gratitude. Death cannot take away a person, so he will always remain alive in our hearts. His dedication, sincerity, and guidance made all of his students a better person. We are going to reminisce this forever. It's quite easy for me to stand up here and proclaim that every person who ever had Mr. Rajesh as a teacher will tell you that he was absolutely the best and most well-liked teacher. He was a blissful kind of person. Mr. Rajesh has touched some of our hearts in very special ways that we can never ever accurately explain the feelings towards him with mere earthly written words. Here's a small heartfelt tribute to late Mr. Rajesh sir to acknowledge his hard work, dedication and renowned personality. Sometimes it's 90 volt and sometimes it's 100 volt, sometimes sad. If he is happy with the whole class is doing, like no more classes, only fun, fun, fun and fun. Indira Gandhi ದೇಶಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನೆಲ್ಲ ಮಾಡಿಲ್ಲ. He was a great person as well as he was a good teacher too. In any situation, he didn't leave his students. Even though
dais, all the teachers, non-teaching staff and parents and students. First, I would like to thank the management for giving the opportunity to Rajesh sir to work in this institution. On behalf of Rajesh sir, I would like to thank the management, Yasin sir, HM Shweta madam, teachers and non-teaching staff, parents and the students who supported Rajesh sir throughout his teaching career. Thank you for recognizing my husband's hard work and dedication. Thank you, one and all. Thank you, ma'am. Potential is not an endpoint, but the capacity to grow and learn. Now, I request Ms. Saman to announce the next set of achievers. Good evening to one and all present here. It's my privilege to stand here to acknowledge the talent of students, teachers and the parents who truly proved to be an asset of this institution. It is a matter of great honor and pleasure to appreciate the hard work as well as the performance of the student who made us proud. Yes, now it's time to present the Best Student Award. And the Student of the Year Award for the year 2021 goes to Miss Arfa Altaf. Thank you, sir. And the Best Teacher Award for the year 2021 goes to Miss Dikshita. Yes, the next award is for the Best Parent. And the Best Parent Award for the year 2021 goes to Mr. Apollo and Mrs. Irene Nasrado. Our school has a very supporting committee of the PTA, which is managed by the President, Ms. Yashoda. Now, I request you, ma'am, to kindly speak a few words. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯರಿಗೂ ಹಾಗೂ ಅಧ್ಯಾಪಕ ವೃಂದದವರಿಗೂ ವೇದಿಕೆ ಮುಂಬರುವ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಹಾಗೂ ಪೋಷಕರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಒಂದೆರಡು ಚುಟುಕು ಮಾತುಗಳ ನಾಡನ್ನು ನಾನು ಬಯಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಇಲ್ಲಿ ಇಂದು 20ನೇ ವರ್ಷದ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ ಸಂಭ್ರಮ ಆಚರಣೆಯಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ ನಾವು. ಒಂದು ಶಾಲೆ ಇಷ್ಟು ಪ್ರಗತಿಪರವಾಗಬೇಕಾದರೆ ಶಾಲೆಯ ಆಡಳಿತ ವರ್ಗ, ಅಧ್ಯಾಪಕರ ವೃಂದ, ಅಗತ್ಯವಾಗಿ ಪೋಷಕರ ಕಾರಣವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಕೋವಿಡ್-19 ಎಂಬ ಮಹಾಮಾರಿಯಿಂದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ನಷ್ಟಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವಂತಾಯಿತು. ಒಂದು ಮಗುವಿನ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾದ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಶಾಲೆಯ ಭಾಗ ಸಿಗಬೇಕು, ಅದು ಈ ಕೋವಿಡ್-19 ನಿಂದ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತಾಯಿತು. ಗುರುಗಳ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಮತ್ತು ಪ್ರೀತಿಯ ಒಳ್ಳೆಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಸಹಕಾರ, ಮನೋಭಾವನೆ ಇವೆಲ್ಲವೂ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಿಗಬೇಕಾದರೆ ಒಂದು ಶಾಲೆಯ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಬೇಕು. ಇಂದು ಇದು ಒಳ್ಳೆಯ ಚೌಕಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಫ್ಲವರಸ್ ಪ್ಯಾರಡೈಸ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಶಾಲೆ ಮಲ್ಪೆ ಇಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ದೊರಕಿದೆ. ಇವರು ಶಿಕ್ಷಕರ ವೃಂದದ ಪರಿಶ್ರಮದಿಂದ, ಆಡಳಿತ ವರ್ಗದವರ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಪಡೆಯುವಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಾವಲಾಗಿ ನಿಂತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಭವಿಷ್ಯದ ಮುನ್ನಡೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಟೀಚರ್ಸ್ ಕೂಡ ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಖುಷಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆನ್ಲೈನ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಎಂಬ ಸಾಹಸ ಸ್ವತ್ತಲನೆಯನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸಿ ಶಾಲೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಕೊಟ್ಟ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ ನಾನು ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತಾ, ನನಗೆ ಮಾತನಾಡಲು ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟ ತಮಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ತಿಳಿಸುತ್ತಾ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸುತ್ತೇನೆ. ಧನ್ಯವಾದ. Thank you, ma'am. I now have privilege in requesting Dr. Roshan Sheikh to kindly deliver her message. Let us lend our ears to the leading and valuable words of our chief guest. Assalamu alaikum and good evening everyone. I am Dr. Roshan from Mumbai. I am pursuing MD degree in pathology in KM Hospital. First of all, I really thank to Almighty Allah for each and everything, and I am also thankful to Yasin sir, Abdul Sattar sir, Malpe Education Society,
for inviting me here and encouraging me. नाम से अल्लाह के करती हूँ आगाज़े बयां, जो निहायत रहम वाला है बहुत ही मेहरबान। नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिही करीम अम्मा बाद। यहाँ मेरा आने का मकसद ये है कि मैं आपको अपनी ज़िंदगी के कुछ फैक्ट आपके साथ शेयर कर सकूं। मेरे पास वक्त बहुत कम है, बोलना ज़्यादा है, तो मैं इन शॉर्ट अपनी लाइफ की जो जर्नी है आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। 2007 एसएससी बोर्ड में मैंने 92% लेकर अपने एरिया में टॉप किया। बचपन से डॉक्टर बनने का सपना था। मेरी जो फैमिली है इकोनॉमिकली बहुत लो है। मेरे जो फादर हैं वो वेजिटेबल वेंडर हैं। बचपन से ख्वाब था कि डॉक्टर बनना है, लोगों की खिदमत करनी है, फैमिली को सपोर्ट करना है। ये ख्वाब के साथ एसएससी दिया, टॉप किया और फिर 11th स्टैंडर्ड में साइंस स्ट्रीम में एडमिशन लिया। जो मेरा कॉलेज था वो घर से काफ़ी दूर था और मुझे मुंबई की लोकल ट्रेन से डेली ट्रैवल करना होता था। 7 अक्टूबर 2008 दिस वाज द डे मेरा पहला सेमेस्टर एग्जाम था और मैं कॉलेज से अपने घर की तरफ रोज़ाना की तरह ट्रैवल ट्रेन में ही सवार हुई बैंड्रा स्टेशन से और मेरा जो डेस्टिनेशन था वो जोगेश्वरी स्टेशन था। रोज़ाना की तरह ही मैं ट्रेन में सवार हुई और ट्रेन जब चली अपनी मंजिल की तरफ, मेरा स्टेशन आने से पहले मैं चलती हुई ट्रेन से गिर पड़ी और उस ट्रेन एक्सीडेंट में मेरे 2 पैर कट गए। मैं 2 स्टेशन के बीच में चलती हुई ट्रेन से गिरी थी और उसी ट्रेन से जिसमें मैं सवार थी, मैं ट्रेन के पहले डब्बे में थी और पूरे 12 घंटों की ट्रेन मेरे दोनों पैरों के ऊपर से कुचल कर चली गई, लेकिन किसी ने ट्रेन की चेन नहीं खींची और ट्रेन काफ़ी दूर जाकर रुकी। तब मुझे रियलाइज़ हुआ, जब ट्रेन इतने नज़दीकी से मेरे आंखों के सामने से जा रही थी, मुझे लगा मैं कोई ख्वाब देख रही हूँ। मेरे साथ ऐसा नहीं हो सकता, मैं तो 1 मिनट पहले ट्रेन के डब्बे में थी, मुझे अपने स्टेशन पे उतरना था। लेकिन जब ट्रेन काफ़ी दूर जाके रुकी तो रियलाइज़ हुआ और जब मैंने अपने कटे हुए पैरों को देखा, उनमें से बहुत ब्लीडिंग हो रही थी और मैं रेलवे ट्रैक पर इसी हालत में पड़ी हुई थी। आसपास कोई भी नहीं था मेरी मदद के लिए। तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैं सच में ट्रेन से गिर चुकी हूँ और उस ट्रेन, वही ट्रेन जिसमें मैं सवार थी, मेरे पैरों के ऊपर से चली गई है। बहुत हेल्प मांगी, गिड़गिड़ाई, रोई और चूँकि मैं 2 स्टेशन के बीच में गिरी थी तो लोगों को जमा होते हुए टाइम लगा। 15-20 लोग आए, मेरे आसपास खड़े हुए। मैंने उनसे कहा कि मेरे बैग में डायरी है, प्लीज़ मेरे घर पे फ़ोन करके बता दीजिए कि मैं इस हालत में यहाँ पर पड़ी हूँ। बिकॉज मुझे लावारिस की तरह नहीं पढ़ना था, लेकिन अल्लाह की तरफ से एग्ज़ाम था मेरे लिए, एक आजमाइश थी कि किसी ने मेरी हेल्प नहीं की। और आफ्टर 15-20 मिनट्स वही रेलवे ट्रैक पर पड़े हुए, उसके बाद मुझे रेलवे से हेल्प मिलती है, मुझे गवर्नमेंट हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। उस गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भी ऑपरेशन स्ट्राइक होता है और मेरा एक्सीडेंट सुबह में होता है 10-11 बजे के बीच, बट शाम के 5-6 बजे तक मुझे कोई ट्रीटमेंट नहीं मिलता और मुझे कॉरिडोर में ऐसे ही रखा जाता है। तो ये सारे एग्ज़ाम्स थे और जब मेरी फैमिली को पता चलता है कि मैं इस हालत में ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल में एडमिट हूँ, तो वो मुझे प्राइवेट हॉस्पिटल शिफ्ट करते हैं और इस प्राइवेट हॉस्पिटल में तकरीबन 2-3 महीने मैं एडमिट रही। और ये जो 2-3 महीने थे मेरे ज़िंदगी के लाइफ चेंजिंग मंथ थे, बिकॉज आई वॉज 16 ईयर ओल्ड जब मेरा एक्सीडेंट हुआ। उस 16 ईयर्स में एक लम्हे में मुझसे मेरे 2 पैर छिन गए, बगैर किसी रीज़न के, बगैर किसी गुनाह के। मैंने कुछ किया नहीं था, लेकिन एक लम्हे में पैर छिन गए तो ज़िंदगी बहुत अजीब हो गई थी। लोगों का सोचने का नज़रिया बदल गया था मुझे लेकर कि 16 साल की उम्र में एक गरीब माँ बाप की बच्ची, दोनों पैर छिन गए हैं, क्या करेगी ये? इसका कोई फ्यूचर नहीं है, ज़िंदगी भर माँ बाप के ऊपर बोझ बन के रहेगी।
बिकॉज दैट टाइम मैं मूव नहीं कर सकती थी अपने आप को, मैं करवट नहीं ले सकती थी, मैं खुद से बैठ नहीं सकती थी, मैं एक जगह से दूसरी जगह हिल नहीं सकती थी, मुझे हर चीज़ के लिए माँ के ऊपर डिपेंड होना पड़ा था। तो ये सारी चीज़ें देखकर लोग जो आते थे देखने मुझे, लोग यही कहते कि 16 साल की उम्र में इसका एक्सीडेंट हो गया है, दोनों पैर छिल गए, ये कभी अपने पैरों पे नहीं चल सकेगी, ये कभी कुछ कर ही नहीं सकती है, इसको जिंदा क्यों रखा है, इसको लाइफ क्यों दी है, इसके जब दो पैर ही नहीं है तो अभी क्या करेगी है, माँ बाप के ऊपर बोझ बनने से अच्छा इसकी जान चली जाती है। ये सारे अल्फाज से लोगों को जब मुझे देखने आते और मुझे भी फील होता कि 16 साल की उम्र में जब मुझसे पैर छिन गए तो मैं आगे क्या सोचूं जिंदगी के लिए, मैं डॉक्टर कैसे करूंगी, मुझे क्यों जिंदा रखा अल्लाह ने। मैं बहुत यही सवाल हर किसी से करती, मैं अल्लाह से भी यही सवाल करती कि जब मुझसे दो पैर छीने थे, मुझे माजूरी और डिसेबिलिटी वाली लाइफ देनी थी कि मैं जिंदगी भर बेड पर पड़ी रहूं, लेटी रहूं, तो इस लाइफ से अच्छा था कि मेरी जिंदगी ले लेते। लेकिन उस दौरान मेरे डॉक्टर ने, मेरे स्कूल के टीचर्स ने, मेरे कॉलेज के टीचर्स ने, मेरी फैमिली ने, मेरी अम्मी ने, मेरे अब्बू ने बहुत सपोर्ट किया, मुझे मोटिवेट किया। मेरी अम्मी के जो 2-4 सेंटेंस थे मैं आपको बताती हूँ कि उन्होंने मुझे कहा कि बेटा, आज अल्लाह ने तुमसे सिर्फ 2 मामूली पैर लिए हैं, तुम्हारे पास पूरा जिस्म है, तुम्हारे पास दिमाग है, तुम्हारे पास हाथ है, तुम्हारे पास आंखें हैं, तुम उनकी जिंदगी सोचो जिनके पास आंखें नहीं है, जिनके पास हाथ नहीं है, जो मेंटली रिटार्डेड होते हैं। आपके पास सब कुछ है, सिर्फ 2 पैर नहीं है, आप पढ़ सकती हो, आगे जा सकती हो, अपने ख्वाबों को पूरा कर सकती हो। मुझे मेरे डॉक्टर ने मोटिवेट किया और उन्होंने ये भी कहा, मेरी अम्मी ने, कि अगर अल्लाह ने तुमसे आज कुछ लिया है, जो भी तुम्हारा था, अल्लाह ने अगर तुमसे कुछ लिया है बेटा, तो इन फ्यूचर तुम्हारे लिए उससे बड़ा कुछ रखा होगा। और आज मुझे रियलाइज होता है कि मेरी अम्मी सही कहती थी कि 2008 में जब मुझसे मेरे 2 मामूली पैर छीने और आज मैं एज ए डॉक्टर आपसे इंटरैक्ट कर रही हूँ। जब इतना मोटिवेशन मिला तो मैंने गिव अप नहीं किया, मैंने अल्लाह की ज़ात पर यकीन रखना सीखा, मैंने अल्लाह से शिकवा किया, शिकायत की, उसी से मांगा और अपनी मेहनत जारी रखी। मैंने भी अपना माइंड बनाया कि नहीं, जब ये लोग मुझे डिसेबल बोल रहे हैं कि 89% डिसेबल के बाद, 2 पैर नहीं होने के बाद ये कुछ नहीं कर सकती, तो मुझे इन लोगों को प्रूव करना है कि मैं कुछ करके दिखाऊंगी। और जो आगे मेरे डिसेबल कैंडिडेट्स होंगे या जो भी लोग होंगे, मैं उन्हें भी ये करके दिखाऊंगी कि एक्सीडेंट के बाद लोग बेकार नहीं होते। कोई एक हाथ, पैर या कोई भी आधा या बॉडी पार्ट्स कटने के बाद कोई भी इंसान नकारा नहीं होता, उसके अंदर एबिलिटी होती है, उसे निखारने की ज़रूरत होती है। तो मैंने ये तय किया और मैंने अपनी मेहनत जारी रखी। 11th मैंने व्हीलचेयर पे दिया, 12th व्हीलचेयर पे दिया और अल्हम्दुलिल्लाह 12th में मैंने डिस्टिंक्शन स्कोर किया। उसके बाद मुझे स्कोर किया ऑल ओवर महाराष्ट्र PH कोटे में और मैं बहुत खुश थी कि अब मुझे डॉक्टर बनने के लिए डिसेबल है तो वो मेडिकल में एडमिशन के लिए एलिजिबल नहीं है। और जब मेरा काउंसलिंग हुआ मेरे एग्जामिनेशन के बाद डॉक्टर्स के पैनल ने, इट वॉज ऑब्वियसली मोर देन 70% डिसेबल, तो मुझे फर्स्ट डे डिनाई किया कि आप मेडिकल में एडमिशन नहीं ले सकती हो बिकॉज आप डिसेबल हो और आप 89% डिसेबल हो, आपके पास 2 पैर नहीं है। उस वक्त मैं बहुत उदास हुई, लेकिन यहाँ पे हिम्मत नहीं हारी, मैंने अल्लाह पे भरोसा रखा कि अगर अल्लाह ताला चाहते हैं कि किस्मत में डॉक्टर बनना है तो कहीं ना कहीं से कुछ तो होगा। उस वक्त मेरे डॉक्टर का फोन आता है, उन्होंने मुझे कहा कि आप बॉम्बे हाई कोर्ट में अपील करो। एक नॉर्मल स्टूडेंट के लिए एडमिशन या किसी भी फील्ड में एडमिशन के लिए एक अच्छे मार्क्स लाना होता है, मैंने वो लाई, बट मेरे सामने एक हर्डल था, मुझे बॉम्बे हाई कोर्ट जाना पड़ा। मैं बॉम्बे हाई कोर्ट गई, मैं हार नहीं मानी, मैं थक के नहीं बैठी, मैंने गिव अप नहीं किया कि मेरी डिसेबिलिटी है, मेरे हाथ में 2 क्रचेस है, मैं डॉक्टर नहीं बन सकती हूँ। बिकॉज इंडिया का कानून है मेरे सामने और कानून को कोई भी टक्कर नहीं दे सकता, कोई भी उसके खिलाफ नहीं जा सकता, तो मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था। बट मैं बॉम्बे हाई कोर्ट गई एक उम्मीद लेकर और अल्लाह पर यकीन रखकर कि अगर अल्लाह ने मेरी किस्मत में रखा है तो जजमेंट मेरे फेवर में होगा। और 2011 में मैं बॉम्बे हाई कोर्ट गई, मैंने केस किया अगेंस्ट मेडिकल काउंसिल और अल्हम्दुलिल्लाह से वो जजमेंट मेरे फेवर में आया। और ये फर्स्ट केस था मुंबई में कि कोई स्टूडेंट को, कैंडिडेट्स को 89% डिसेबल होने के बाद भी किसी को मेडिकल फील्ड में एडमिशन के लिए दिया गया। तो वहाँ से जजमेंट जीतने के बाद मुझे अल्लाह ने इतनी सारी आजमाइशें दी, बट गेस कि मुझे किस चीज़ से नवाजा उन्होंने। इन रिटर्न मुझे मिलता है एडमिशन इंडिया के टॉप मोस्ट कॉलेज में, विच इज सेंट जेम्स मेडिकल कॉलेज इन KEM हॉस्पिटल। तो मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ अल्लाह की कि अल्लाह ने मेरे लिए इतनी आजमाइशें रखी
लेकिन फिर भी मुझे इतना अच्छा कॉलेज दिया, मेरी हैसियत से बढ़कर कॉलेज दिया। उसके बाद मैंने MBBS प्रूव करना है, मुझे MBBS क्लियर करके लोगों की जो मेंटालिटी है उसे बदलनी है। मुझे ये जो लॉ है इसे डिफाइन करना है कि कोई भी कैंडिडेट अगर मोर देन 70% डिसेबल है तो उसकी डिसेबिलिटी पे उसे मत जज किया जाए, उसकी एबिलिटी को निखारने की कोशिश करनी चाहिए। तो मैंने MBBS अच्छे मार्क्स से स्कोर किया। अल्हम्दुलिल्लाह 2016 में मैंने फर्स्ट क्लास से अपना MBBS क्लियर किया। और उसके बाद जब काफ़ी चर्चा हुआ, लोगों को पता चला कि मैंने एक हिस्ट्री कायम की कि इतने 2 पैर नहीं होने के बाद भी, इतनी ज़्यादा डिसेबिलिटी होने के बाद भी एक लड़की अगर MBBS क्लियर कर सकती, तो बहुत सारे लोगों ने फेलिसिटेट किया। उसके बाद मैंने सोचा कि मेरी जर्नी सिर्फ MBBS तक नहीं होनी चाहिए, मुझे MA डिग्री भी करनी है। मैंने नीट PG दिया और नीट PG के दौरान जो बहुत टफेस्ट एग्जाम होता है उसमें भी अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 3rd रैंक स्कोर किया ऑल ओवर महाराष्ट्र एंड PH कोटा। बट यहाँ पर भी आजमाइश थी मेरे लिए, एक एग्जाम था अल्लाह की तरफ से कि डिस्पाइट ऑफ पासिंग फर्स्ट क्लास इन MBBS, यहाँ भी मुझे डिनाई किया बिकॉज ऑफ माई डिसेबिलिटी। बट यहाँ पे ओनली 2 days आई हैव कि उन 2 दिनों में मुझे फॉर्म फिल करना था और फॉर्म फिल में मैं 89% डिसेबल थी, तो मेरा फॉर्म ऑनलाइन एक्सेप्ट नहीं हो रहा था। तो यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन है, तो कहीं ना कहीं से कोई सोच तो होगा। मुझे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का फोन आता है, वो मेरी एप्लीकेशन फॉरेन सेंट्रल हेल्थ मिनिस्टर के पास लेके जाते हैं और ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है, एक हिस्ट्री कायम हुई है कि कोई भी 20 साल पुराना कानून सिर्फ 2 दिन में चेंज हुआ हो, वो भी एक स्टूडेंट की एप्लीकेशन से। तो मेरे एप्लीकेशन के बाद जो 20 साल पुराना कानून था 40 to 70% डिसेबिलिटी वाला, अल्हम्दुलिल्लाह से वो चेंज हुआ एंड अगेन आई गॉट एडमिशन इन SGS मेडिकल कॉलेज एंड KEM हॉस्पिटल एंड नाउ आई एम परसुइंग फर्स्ट क्लास से पास हो जाऊँ। मेरी जो लाइफ के फैक्ट्स थे ये बताने का मकसद सिर्फ ये है कि मुझे आप लोगों से सिंपैथी नहीं चाहिए, मुझे आप लोगों की नज़रों में वो दर्द और हमदर्दी नहीं चाहिए कि इस बच्चे के साथ इतना सब कुछ बुरा हुआ लेकिन अभी भी ये डट के खड़ी है, मुझे ये नहीं चाहिए। मुझे आप लोगों के अंदर वो जज्बा चाहिए, वो पैशन चाहिए कि आप लोगों के पास कोई भी परेशानी आए, कोई भी मुसीबत आए, आप लोग डट कर मुकाबला कीजिए। मेरी लाइफ में मैंने हर परेशानी का सामना किया, चाहे वो फाइनेंशियली हो, चाहे वो मेंटली स्ट्रेस हो, चाहे वो फिजिकली हो, चाहे वो इकोनॉमिकली हो। फीस नहीं होने के बाद भी मेरे पास फीस के पैसे नहीं थे, ऑपरेशन के पैसे नहीं थे, बट मैंने हिम्मत नहीं हारी। मैंने लोगों को बताया कि मेरे अंदर कुछ करने का जज्बा है, मुझे अल्लाह पर यकीन है, मुझे डॉक्टर बनना है, तो लोग मेरी सपोर्ट को आगे आते थे। मैं ये नहीं कर रही कि मैं ये सारी चीज़ें खुद से की, मैंने मेरे जो इतनी लंबी जर्नी रही, मुझे अल्लाह ने कई नेक बंदों से हेल्प से नवाजा, कई नेक बंदे मेरी हेल्प के लिए आए, लेकिन ये इसलिए आए बिकॉज मैंने अपने कदम आगे बढ़ाए। मैंने कभी गिव अप नहीं किया। मैंने 12 साल पहले नहीं सोचा कि मेरे पास 2 पैर नहीं है, मैं तो बेड पर लेट गई हूँ, मुझे नहीं करना है, मैं डॉक्टर बन ही नहीं सकती, बिकॉज उस वक्त आर्टिफिशियल लेग कैसे होते हैं ये मुझे पता नहीं था। तो मुझे कोई आइडिया नहीं था कि मैं अपने फ्यूचर में 2 पैरों पे इस तरह खड़ी रहूंगी कि लोग मुझे देखकर पहचानेंगे भी नहीं कि मेरे पास 2 पैर नहीं है। मैं जो आज आपके सामने खड़ी हूँ, मेरे पास मेरे जो दोनों पैर हैं वो नकली हैं, बट आप लोगों को अंदाजा भी नहीं होगा कि मेरे पास 2 पैर नकली नहीं है। उस वक्त मुझे अंदाजा नहीं था, बट अल्लाह पर यकीन था और खुद पे भरोसा था कि मैं अगर मेहनत करूंगी तो इंशाअल्लाह जरूर कामयाबी मिलेगी। तो मैं अपनी ज़िंदगी के हालात एक मकसद से आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि हालात चाहे जैसे भी हो, हमें अल्लाह की ज़ात से उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए, बिकॉज अगर हालात और मुश्किलों को लाने वाली ज़ात अल्लाह की है तो उसे हल करने वाली ज़ात भी अल्लाह की ही होती है। एक बात सीखी है मैंने अपनी ज़िंदगी में कि इंसान को कोई चीज़ हरा नहीं सकती जब तक वो खुद हार ना मान ले। मुश्किलों से लड़ना सीखिए, इंशाअल्लाह कामयाबी आपकी कदम चूमेगी। और एक शेर मैं आप सबको अर्ज करना चाहूँगी, परेशानियों से भागना आसान होता है, परेशानियों से भागना आसान होता है, हर मुश्किल वक्त जिंदगी में एक इम्तिहान होता है। हिम्मत हारने वाले को कुछ नहीं मिलता जिंदगी में, हिम्मत हारने वाले को कुछ नहीं मिलता जिंदगी में, मुश्किलों से लड़ने वालों के कदमों में ही जहान होता है। यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि बहुत ज़्यादा तादाद में हमारी बहनों ने शिरकत की है और लड़के कहीं भी दिखाई नहीं दे रहे। मुझे 10% लड़के हैं और 80% औरतें हैं, तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। और मैं अपनी बहनों से और अपनी बहनों की अम्मियों से गुजारिश करना चाहूँगी कि आप लोग तालीम के मैदान में आगे आए,
क्योंकि बच्चे का जो पहला स्कूल होता है वो अम्मी की गोद होती है, और आप लोग जो है वो नस्लों की तामीर करती हैं। अगर यहाँ पे एक मर्द तालीम याफ्ता हो, एजुकेटेड हो, तो उससे सिर्फ एक माशरा बेनिफिट लेता है, लेकिन अगर एक माँ, एक औरत एजुकेटेड हो तो उससे आने वाली जनरेशन बेनिफिट लेती है। तो ये ध्यान में रखकर ही प्लीज आप लोग तालीम के मैदान में आगे आइए, हमें आपकी ज़रूरत है। हम लड़कियों को ये नहीं समझना चाहिए कि हमारा हिजाब, तहजीब या रिलीजन हमारे एजुकेशन की फील्ड में आड़े आ सकता है, बिकॉज हिजाब में ही रहकर मैंने MD तक की पढ़ाई हासिल की है। तो मैं आप लोगों के सामने एक एग्जाम्पल रख सकती हूँ कि आप लोग अगर सोच रही है कि आप हिजाब के साथ आगे नहीं आ सकती, तो ये बहुत गलत सोच है। आप लोग प्लीज तालीम के मैदान में आगे आइए, और मैं यहाँ पर बैठी सारी बहनों से गुजारिश करूंगी कि आप लोग जो भी कोई रिलीजन से हो, हम सब इंडियन हैं पहले, और हमें अपने मुल्क का नाम रोशन करना है। तो आप लोग प्लीज तालीम के मैदान में आगे आइए। और एक ये शेर आप लोगों के लिए अर्ज करना चाहूंगी मैं, इंसान के किरदार की मेमार है औरत, इंसान के किरदार की मेमार है औरत, इखलास और मुरव्वत की तरहदार है औरत, ये माना रहम दिल है सनफ़े नाजुक, नर्म तू है सनफ़े नाजुक है, ये माना रहम दिल है नर्म तू है सनफ़े नाजुक है, मगर जब वक्त पड़ जाए तो एक तलवार है औरत। यहाँ पर आने वाले तमाम लोगों से, स्टूडेंट से, पेरेंट्स से, टीचर से, नॉन टीचिंग स्टाफ से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि आप सबको मलपे एजुकेशन सोसाइटी और फ्लावर ऑफ पैराडाइज पब्लिक स्कूल, यासीन सर, अब्दुल सत्तार सर, उनकी टीम का शुक्रगुजार होना चाहिए कि ये लोग आप लोगों के लिए इतनी ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं। मुझे इन्होंने मुंबई से इनवाइट किया, इतना टाइट शेड्यूल था, बट इन्होंने इतनी कोशिश की कि जस्ट बिकॉज आप लोग मोटिवेट हो, आप लोग अपनी ज़िंदगी में कुछ करें। आप लोगों के पढ़ने से इन्हें कुछ नहीं मिलेगा, बट जस्ट बिकॉज हमारी कौम आगे बढ़े, हमारा मुल्क आगे बढ़े, तो ये लोग इतनी अच्छी तरीके से कोशिश कर रहे हैं। तो आप लोगों का भी फर्ज बनता है कि इनकी कोशिशों को सक्सेस में बदले, कामयाबी में बदले, और बहुत अच्छे से पढ़े। और एक शेर आप सब बच्चों के लिए मैं पेश करना चाहूँगी कि जिंदगी में कभी हार मत मानिए, और आप लोग तालीम के मैदान में उस मकाम पर पहुँचिए कि वहाँ पर जाके लोग आप पे रश करें, और आप एक दिन इसी स्टेज पर आके लोगों से इंटरेक्ट करें। मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाए तुझको दरिया तू समंदर तलाश कर, हर शीशा टूट जाता है पत्थर की चोट पर, हर शीशा टूट जाता है पत्थर की चोट पर, पत्थर ही टूट जाए वो शीशा तलाश कर। मैं बहुत ज़्यादा थैंकफुल हूँ आप सब लोगों की कि आप लोगों ने इतने अच्छी, इतने पेशेंटली मुझे सुना, और मुझे बहुत खुशी हुई, बहुत इंकरेज किया। बस एक गुजारिश करूँगी कि आप लोग प्लीज़ कुछ सीखिए ज़िंदगी में, अल्लाह पर यकीन रखना, अपने गॉड पर यकीन रखना, और बस मुश्किलों से कभी हार नहीं मानना, कभी भी हार नहीं मानना, बिकॉज जब तक आप कोशिश नहीं करेंगे सामने वाला आपकी मदद के लिए नहीं आएगा। आखिर में मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ यासीन सर की, अब्दुल सत्तार सर की, मलपे एजुकेशन सोसाइटी की, स्कूल की, और सारी स्टाफ की कि इन्होंने इतने अच्छे से मुझे यहाँ इनवाइट किया, मुझे इस काबिल समझा कि मैं आप लोगों को आके मोटिवेट कर सकी। मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। थैंक यू सो मच।